Hello everyone, welcome back to the session. So in the previous session we have learned how to color correct our footages, how to add or how to adjust the contrast, how to adjust the exposure and how to deal with the saturation for any kind of footage. So now we are going one step further, that is we are going to start with the color grading process. So before starting with color grading process, we have to keep certain things in our mind, that what a particular film should look like, what is the feel of that particular scene on which we are working on, right? So you might have observed in many movies they always try to follow a picture style, right? अगर आप कुछ periodical movies देखोगे, right, कुछ period films देखोगे, in that particular film they use certain pale look, right? जैसे आपने उनका जो टोन देखा होगा मूवीज का, वो थोड़ा येलोइश टोन रहता है, टू शोकेस दैट इट्स एन ओल्ड फिल्म, राइट? तो वैसे ही हर एक सीन की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट होती है. इट्स नॉट दैट कि आपने एक बार कलर करेक्शन कर दी देन आप रैंडमली कोई भी ग्रेडिंग कर रहे हो उसके ऊपर, राइट? सो अलग कलर्स का अलग इफेक्ट होता है आपके मूड के ऊपर, आपके ऑडियंस के ऊपर. सो whatever impact you want to create on your audience, you can create it through the color grading process. What do you want that audience should feel like at that particular time while watching the movie, right? कुछ भी intense है, कुछ भी इमोशनली कुछ कनेक्टेड है, तो वहाँ पे कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर आपके फुटेज में कलर्स प्रॉपर नहीं ग्रेडेड, so in that particular case also there can be loss in connection. The viewer or the audience might not feel much connected with your particular scene, right? कि उसके colors वैसे नहीं है because. So यहाँ पे भी before starting with the project we have to make sure that whatever color grading process we are going to follow up, it's not that we have to follow the trend only. फॉर एग्जाम्पल मार्केट में अभी अगर आप देखोगे तो काफ़ी हद तक आपको टील ऑरेंज लुक, दैट इज़ वेरी मच ओवर हाइप्ड, राइट? कि आपको टील एंड ऑरेंज लुक देखने को मिलेगा, चाहे वो फोटोग्राफी में है या वीडियोग्राफी में है. बट color grading is more than adding just teal and orange look to your particular footage. It's about how your particular audience should feel like when they are seeing a scene and when they are looking at the colors, because color create an direct impact on the human psychology, right? So now let's start with our color grading process again. लुमेट्री कलर पैनल में जाते हैं, देन हमारे पास आप देख सकते हो कि जो पहले था दैट वाज बेसिक विच वाज यूज फॉर क्रिएटिंग द बेसिक लेआउट फॉर अ पर्टिकुलर फुटेज, जिसमें हम कलर करेक्शन करते हैं अगर कोई भी कंट्रास्ट में प्रॉब्लम है, एक्सपोजर में कोई प्रॉब्लम है, शेडोज में हाईलाइट्स को एडजस्ट करना है, even if I have to deal with the the overall colors, that is through adjusting the saturation, right? सो उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें और कैसे और डेप्थ या डिटेल ऐड ऑन कर सकते हैं. देन हमारे पास यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू हम अपने फुटेज की जो कलर्स की डिटेल है या डेप्थ है वो और ज़्यादा हम क्रिएट कर सकते हैं इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिएटिव प्रोसेस. नाउ अंडर द क्रिएटिव प्रोसेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रीसेट्स हैं. जैसे इफ आई गो टू द लुक ऑप्शन देन आई एम हैविंग सर्टेन प्रीसेट्स. सो यहाँ पे जितने भी आपको प्रीसेट्स दिख रहे हैं, जो भी प्रीसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, दे आर ऑलवेज created by taking some reference image or by taking some reference footage. So there is a probability that whatever look you're going to explore here, they might be very much similar or they might be very much different from the footage which you are currently working on. बिकॉज हो सकता है कि आप जो फुटेज लेके आए हो वो आपके किसी सोनी के जो कैमरे हैं उसके
ऊपर बेस्ड है, राइट, आपने सोनी के कैमरे से शूट किया है, बट जो यहाँ पे लुक्स क्रिएट की गई हैं, हो सकता है कि वो लुक्स कोई कैनन के कैमरे के थ्रू जो हमने कैप्चर किया है उसके ऊपर ट्राई किया गया हो, या फिर कोई नाइकन का कैमरा हो, राइट। सो पिक्चर स्टाइल कैन ऑलवेज डिफर फ्रॉम कैमरा टू कैमरा। सो जो भी एडजस्टमेंट आप अप्लाई कर रहे हो सकता है कि जो पिक्चर स्टाइल या फिर जो फिल्म लुक यहाँ पे क्रिएट की गई है, उस पर्टिकुलर फिल्म लुक को क्रिएट करने के लिए जो भी रेफरेंस इमेज ली थी, मे भी हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई कंट्रास्ट था, शेडोज़ अच्छे थे, कलर्स अच्छे थे नॉर्मली, राइट। और हो सकता है जो फुटेज आप लेके आए हो उसमें कंट्रास्ट बहुत कम है, उसमें हो सकता है शेडोज़ बहुत ज़्यादा कम है, सैचुरेशन कम हो सकती है, राइट। सो इट टोटली डिपेंड्स फ्रॉम फुटेज टू फुटेज। अगर आपकी फुटेज में जो कलर्स हैं वो प्रॉपर नहीं दिख रहे, बट स्टिल यू वांट टू स्टिक टू विद दैट पर्टिकुलर लुक, you can apply that look, and after that you can go through certain adjustments, right? बिकॉज अगर आपको ओवरऑल कलर अच्छे लग रहे हैं बट उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं, देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग और एडिंग कंट्रास्ट इनटू योर फुटेज, दैट यू कैन ऑलवेज डू बाय एडजस्टिंग सम वैल्यूज फॉर श्योर, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग टाइप के लुक्स मिल जाएंगे, जिसका अगर आप देखें, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, सो नाउ हेयर यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट करके आप देख सकते हो जितने भी फिल्म लुक्स यहाँ पे अवेलेबल है, सेम उनका आप एक जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको। तो इसका बेनिफिट क्या है कि बिफोर अप्लाइंग दैट पर्टिकुलर लुक, you can always have a preview and decide that which particular look suits the best for my footage, right। जैसे यहाँ पे आप जितना भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको अलग अलग टाइप की लुक्स मिलेंगी, right, and based upon that particular look you can always choose a particular preset and after that you can apply it, right। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे जस्ट फॉर रेफरेंस, हम इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे बट स्टिल जस्ट फॉर रेफरेंस व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ से कोई भी एक, जैसे यहाँ पे चलो ये वाला मैं टेम्पलेट यूज़ करने वाला हूँ। सो टू अप्लाई दैट पर्टिकुलर फिल्म लुक, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक हियर। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपका जो फाइनल आउटपुट है यहाँ पे आपको प्रीव्यू हो जाएगा। ये तो जस्ट आपको नॉर्मल प्रीव्यू मिल रहा है बिफोर अप्लाइंग, आफ्टर दैट यू कैन सी दैट व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर लुक। सो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो अभी, राइट। अगर मैं यहाँ से क्रिएटिव को अभी अनचेक कर दूँ तो आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर, राइट। आपके इस पर्टिकुलर एरिया में, राइट, जैसा जहाँ पे आपके क्लाउड्स हैं, स्काई है, माउंटेन्स है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का सा सियान टोन ऐड हुआ है। मतलब आप हम आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दिखेगा, आपको दो कलर्स दिख रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे, सियान एंड बेसिकली योर, जैसे यहाँ पे हल्का हल्का येलो टोन है, रेड टोन है। And one more thing which I want to share with you guys is that whenever you're doing color grading, never look for a specific color. When I say specific color, I mean to say that आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो फुटेज में, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे जैसे रेड या ऑरेंज टोन है, यहाँ पे मेरे पास पिंक मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन है, राइट। हो सकता है ये इसको आप ब्राउन कह सकते हो, राइट। तो अलग अलग टोन्स जो कलर के रहते हैं, हम बेसिकली उनको ना ऑब्जर्व करके सिर्फ तीन कलर्स को ही ऑब्जर्व करेंगे अपनी फुटेज में। दैट इज अ बेसिक रूल, राइट। फॉर एग्जांपल रेड, ग्रीन एंड ब्लू, आपने सिर्फ ये तीन कलर्स के ऊपर ही फोकस करना है अपनी पूरी फुटेज में। फुटेज में ब्राउन कलर शो हो रहा है उसको इग्नोर करना है, फुटेज में आपको पर्पल शो हो रहा है, नहीं, हम कभी भी कलर्स को वैसे नहीं देखते। वी ऑलवेज लुक एट द कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फुटेज को सिर्फ इन तीन कलर्स में डिवाइड करके एनालाइज कर पा रहे हो, देन आपके लिए कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग बहुत ही ईजी होने वाली है। बिकॉज
यू विल गेट टू नो दैट ओके मेरी इस पर्टिकुलर फुटेज में चाहे वो हाईलाइट्स हो, मिड टोन्स हो, शेडोज हो, राइट, मुझे कहाँ पे क्या एडजस्ट करना चाहिए। अगर मेरे फुटेज में कहीं पे ग्रीन ज़्यादा है तो मुझे उसको कैसे बैलेंस आउट करना है, ब्लू ज़्यादा है तो कैसे बैलेंस आउट करना है, राइट। सो आपने इन 3 कलर्स के ऊपर फोकस रख के ही अपने जो टोन है उसको एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे पता है कि यहाँ पे ब्लू टोन ऐड करनी है, यहाँ पे ग्रीन कम है तो यहाँ पे ग्रीन ऐड करना है, या फिर ग्रीन ज़्यादा है तो उसमें मैं मेजेंटा, राइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो भी आपके पास स्पेसिफिक कलर है, राइट, बेसिकली वी वर्क विद रेड, ग्रीन एंड ब्लू। एंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका जो ऑपोजिट कलर है वी ऑलवेज ट्राई टू ऐड दैट। That is for red we will try to add cyan if there is more red tone and vice versa, which means कि अगर फुटेज में ज़्यादा cyan कलर है तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेड कलर ऐड करता जाऊँगा, सो दैट कि वो जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। After that, for green color I will choose to add magenta if there is more of green and vice versa. Then coming back to the blue, for that I will be adding the yellow, right. तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक एडजस्टमेंट देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब फेडेड फिल्म का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट वी कैन डू इज we can simply select on this particular option and start exploring with it। जैसे यहाँ पे अगर मैं फेडेड फिल्म करूँगा तो आप देख सकते हो कि बेसिकली क्या हो रहा है कि ये मेरे जहाँ पे शेडोज है, राइट, उसके ऊपर, ठीक है, ये जो डेप्थ है वो कम होती जा रही है। जैसे अगर मैं इस एरिया को लूँ, अगर इसको जूम इन करके मैं देखूँ, ये मेरे पास पहले था, दिस वॉज बिफोर एंड दिस इज नाउ आफ्टर। तो कुछ मूवीज़ में कुछ म्यूज़िक वीडियोस में भी इस टाइप की लुक क्रिएट की जाती है, बट दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका जो सीन है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। देन वी हैव द शार्पन विच इज़ बेसिकली यूज टू क्रिएट और ऐड शार्पनेस टू योर पर्टिकुलर फुटेज, राइट। आपकी फुटेज में जितनी शार्पनेस ज़्यादा होगी आप उसमें उतनी ज़्यादा डेप्थ ऐड कर सकते हो, राइट। सो इसको अपने अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा भी नहीं करना, बहुत कम नहीं करना, बिकॉज जैसे ही आप शार्पनेस कम कर देते हो आप यहाँ पे फोकस कर पाओगे कि जो आपकी फुटेज है, एज सच हमने इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट नहीं डाला, हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी शार्पनेस जो है वो डिक्रीज कर दी है। जैसे अगर इसको मैं दोबारा रीसेट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द नॉर्मल रेंज एंड नाउ आफ्टर दैट इफ आई डिक्रीज द शार्पनेस देन वो थोड़ी बहुत ब्लर होनी शुरू हुई। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप अपनी फुटेज को कितना शार्प रखना चाहिए। जितना शार्प रखोगे आपके पास डेप्थ उतनी ज़्यादा आएगी, बट मेक श्योर कि आप किस टाइप की फुटेज के ऊपर वर्क कर रहे हो। अगर आपकी फुटेज की क्वालिटी अच्छी है तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन इंक्रीज इट अप टू अ वैल्यू वेयर इट डजंट गेट्स टू मच डिस्टॉर्टेड, राइट। तो आप बेसिक कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। Then after that, vibrance. Now coming back to the vibrance and saturation, as you all know that when we talk about saturation, it means we are talking about the overall intensity of that particular color, right? And for saturation, for example, अगर यहाँ पे अगर मैं saturation increase करता हूँ, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं saturation increase कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जो कलर की इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है। इसको मैं एक लेवल तक अगर लेके जाऊँ तो हो सकता है कि वो आपके कलर्स भी बहुत ज़्यादा ही ऐड हो जाए टोन में। एंड जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े से कलर्स प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको हम नॉर्मली रखेंगे डिपेंडिंग कि हमारी जो रेंज है कहाँ तक सही जा रही है स्पेसिफिकली। देन वी कम टू द वाइब्रेंस पार्ट। अभी वाइब्रेंस को समझते हैं बिकॉज सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस दे सम हाउ कंट्रोल दी इंटेंसिटी ऑफ योर पर्टिकुलर कलर ओनली, बट वाइब्रेंस में क्या होता है कि ये आपके मिड टोन्स और आपके शेडोज़ के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है, उसके जो हाईलाइट्स हैं उनको एडजस्ट करता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी इंटेंसिटी अगर चेंज करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ 0, अब एक बार सैचुरेशन की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करके देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलर्स किस वे में आपके ऐड ऑन हो रहे हैं, राइट। सो इसको अगेन रीसेट करते हैं। देन यहाँ पे मैं वाइब्रेंस की वैल्यू एडजस्ट करता हूँ। अब जब मैं वाइब्रेंस ऐड कर रहा हूँ, नो डाउट वाइब्रेंस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, बट इट लुक्स समहाउ स्टिल बेटर देन दी सैचुरेशन, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सैचुरेशन के कंपैरेटिवली इसका आउटपुट थोड़ा आपको बेटर मिलेगा। सो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो।
सी कोई भी वैल्यू आप एडजस्ट कर रहे हो, what I've seen that some students try to add certain values, right? They simply पुल दिस स्लाइडर टू एक्सट्रीम रेंज। जैसे अगर मुझे वाइब्रेंस बढ़ानी है तो कई लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे बढ़ा देते हैं, है ना, फिर कहते हैं कि आउटपुट नहीं अच्छा आ रहा। सो जब भी आपने आउटपुट चेक करनी है कि बेटर है कि नहीं, तो उसको स्लोली स्लोली इंक्रीज करें या फिर स्लोली स्लोली डिक्रीज करें, सो दैट कि आपको पता लग पाए कि एक प्रॉपर रेंज जहाँ पे आपकी फुटेज के कलर्स या फिर उसके जो टोन है वो मेंटेन रहे, राइट। जैसे यहाँ पे मैं स्लोली स्लोली इंक्रीज करूँगा कि हो सकता है एक पॉइंट पे आके मुझे लगे कि हाँ यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा। सो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इवन कि अगर मैं वाइब्रेंस को कम्प्लीटली लेफ्ट साइड पे पुल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि एज सच मेरी फुटेज जो है कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट नहीं है, अभी भी इसमें थोड़े थोड़े कलर्स हैं, आपको अगेन मिड टोन्स और हाईलाइट्स में दिखेंगे कंपेयर टू सैचुरेशन। अगर सैचुरेशन में जाके मैं इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आप देख सकते हो यहाँ पे ये कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं पे भी आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सैचुरेशन एंड अ वाइब्रेंस। तो यहाँ से थोड़ा हम वाइब्रेंस एडजस्ट करते हैं सो दैट कि मुझे स्पेसिफिकली कलर्स अच्छे दिख सकें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रीन के कलर्स आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड होते जा रहे हैं आपके फ्रंट में, बैकग्राउंड में। सेम आपके पास हाईलाइट्स में या फिर आपके स्काई एंड शेडोज एंड माउंटेन्स में अगेन थोड़े हल्के से ब्लू टोन ऐड हो रहा है। देन आपके सैचुरेशन है, आप ओवरऑल सैचुरेशन को भी एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो आप देख सकते हो कि बेसिक करेक्शन के बाद हमने जब क्रिएटिव पार्ट में आए तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जो कलर्स हैं उसकी इंटेंसिटी में थोड़ा सा कुछ इंक्रीमेंट किया, राइट, जैसे यहाँ पे। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास कर्व्स हैं, कलर व्हील HSL। सो इनका क्या पर्पस है, whenever you're working on a specific range, right, you can adjust your specific color, you can adjust your specific area by selecting all these tools. This is how they really help out. So इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे हम कर्व्स के बारे में, अगर किसी ने पहले कर्व्स किए हैं या फिर किसी को कर्व्स की नॉलेज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, राइट, जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कहाँ पे किसकी एडजस्टमेंट करनी है। सो लेट्स अज्यूम द बॉटम पार्ट इज योर ब्लैक, द टॉप पार्ट इज योर वाइट, राइट, एंड इन बिटवीन यहाँ पे ये हमारे मिड टोन्स आ गए, हाईलाइट्स एंड ये शेडो एरिया, राइट। यहाँ से यहाँ तक की रेंज लेट्स सपोज कि शेडो है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज जो है मिड टोन की है, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है दैट इज योर हाईलाइट्स। तो ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है, राइट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू चैनल, राइट। सो यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे सिलेक्ट करके कोई भी एडजस्टमेंट करोगे, सो वहाँ पे क्या होगा कि ओवरऑल आपकी फुटेज की जो लाइटिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लेफ्ट माउस बटन से, इसको होल्ड करता हूँ एंड देन इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेट लाइन है उसको नीचे की तरफ मूव करूंगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ओवरऑल मेरी फुटेज की लाइटिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये थोड़ी डार्क होती जा रही है। और डार्क में भी आप देख सकते हो कि किस वे में डार्क हो रही है, बिकॉज ये हमारा शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स और ब्लैक्स एंड वाइट दोनों पे इफेक्ट कर रहा है, राइट। सेम यहाँ पे अगर इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू और ज़्यादा ऐड ऑन करते जाएगा और लाइट मेरी और ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, राइट। डबल क्लिक करेंगे तो रीसेट हो जाएगा। नाउ अगर आप RGB कर्व के साथ, ठीक है, लाइटिंग को एडजस्ट करना सीख जाते हो, चैनल्स में जाके स्पेसिफिकली एडजस्टमेंट करना सीख जाते हो, तो आप काफ़ी हद तक इवन की वाइट बैलेंस भी यहाँ पे आके कर सकते हो। नो डाउट हमारे पास वाइट बैलेंस के अलग से टूल मिला है, बट स्टिल काफ़ी हद तक आप वाइट बैलेंस यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो, काफ़ी हद तक आप लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो, एंड काफ़ी हद तक आप इसी पर्टिकुलर एक टूल के थ्रू ही अपने ओवरऑल फुटेज को जो है कलर ग्रेड भी कर सकते हो, अगर आपके पास इसकी थोड़ी अच्छी नॉलेज है तो। सो लेट्स सपोज कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने हाईलाइट्स में चेंजेस चाहिए, मैं नहीं चाहता कि जो मिड टोन्स हैं या शेडोज हैं, डार्क एरियाज हैं, उसके ऊपर आए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी एक स्पेसिफिक रेंज बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ, राइट। अब आप देख सकते हो कि अब मेरे पास 1 2
3, 3 पॉइंट्स हैं, राइट। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को मूव करके एडजस्ट करता हूँ, दैट इज फॉर योर वाइट्स एंड द हाईलाइट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप अपना फोकस इस पर्टिकुलर रेंज में रखिएगा फॉर योर स्काई, क्लाउड्स एंड द माउंटेन्स। इस पर्टिकुलर रेंज पे आप देखिएगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ओवरऑल फुटेज में क्या पड़ रहा है और इस पर्टिकुलर रेंज में क्या पड़ रहा है, राइट। तो अगर मुझे अपने, अब आप देख सकते हो कि जब मैं अपने हाइलाइट्स को या फिर अपने वाइट्स को मूव कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये जो एरिया है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड यही हो रहा है, राइट। इन बिटवीन भी होगा बिकॉज कहीं ना कहीं ये मिड टोन के बहुत नियर बाय है, राइट। एंड हमारे शेडोज पे भी कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट डाल रहा है। बट मोस्टली जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपको पड़ेगा आपके हाईलाइट्स में या फिर वाइट एरिया में। तो आप देख सकते हो जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। अब एज सच कहीं ना कहीं ये देख सकते हो आप कि ये कुछ इस तरह की कर्व जो है हमारे शेडोज में भी मूव कर रही है, दैट्स वाई अब आपको ये एरिया भी इफेक्ट होता दिखेगा, राइट। तो इसको अंडू करते हैं। देन अगर आप चाहते हो कि बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट रहे, आई डोंट वांट कि जब मैं इसको मूव करूँ तो ये वाला जो लाइन है, ठीक है, इसमें भी एडजस्टमेंट हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी एक पॉइंट ऐड कर देंगे, देन इसको मूव करेंगे। अब जो लिमिट मूवमेंट होगी थोड़ी और लिमिटेड हो जाएगी। पहले क्या था कि इसको जब हम मूव करते थे तो यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होती थी, उसको भी अब देख सकते हो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आपके जो हाईलाइट्स हैं, जैसे जो स्काई हो गया, बैकग्राउंड में क्लाउड्स हो गए, वहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है, राइट। और मूवमेंट को लिमिट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वी कैन कीप ऑन एडिंग पॉइंट्स टिल वेयर वी गेट द रिजल्ट, राइट। जैसे यहाँ पे, राइट। सेम जैसे शेडो एरिया है, शेडो में कुछ पार्ट कम करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे है ना, इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करवा सकते हैं आप। तो इसको एक बारी बिफोर आफ्टर देख सकते हैं। सी, जब भी आप कलर ग्रेडिंग या कलर करेक्शन प्रोसेस कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप ही करिए। कभी कोशिश मत करो कि एक ही टूल से आपको सारे के सारे आउटपुट मिल जाएं। ऑलवेज ट्राई टू ऐड लिटिल चेंजेस, बिकॉज हो सकता है अगर आप मेजर चेंज ऐड कर रहे हैं एंड आपकी फुटेज पे जो चेंज है वो अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू द इमोशन ऑफ दैट सीन प्रॉपर नहीं है, तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े। तो जो भी एडजस्टमेंट आप ऐड ऑन कर रहे हो वो उसको स्लोली स्लोली ही कीजिए, वन बाय वन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अभी सिर्फ स्काई के लिए थोड़ा डेप्थ ऐड करने के लिए यहाँ पे आई। पहले आप देख सकते हो कि स्काई में थोड़ी डेप्थ कम थी और अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़्यादा हमने और ऐड किया। देन कमिंग बैक टू आर स्पेसिफिक चैनल, जैसे यहाँ पे अभी क्या गया कि हमने RGB के ऊपर वर्क किया है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आफ्टर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू स्पेसिफिकली वर्क ऑन माय रेड चैनल, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल, राइट। रेड चैनल में क्या होगा कि बेसिकली आप अपने फुटेज में की जो रेड टोन है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर बार को या इस पर्टिकुलर लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करूँगा तो वहाँ पे वो वाला टोन ऐड होगा, नीचे की तरफ करूँगा तो वहाँ पे वो वाला टोन जो है नेगेटिव की तरफ जाएगा। विच मीन्स कि रेड के ऑपोजिट मेरे पास कौन सा कलर है, सियान। तो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो मेरी फुटेज में क्या होगा, रेड टोन ज़्यादा ऐड होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो रेड टोन ज़्यादा ऐड हो रहा है। सेम अगर मैं इसमें नेगेटिव की तरफ जाऊँगा तो यहाँ पे ब्लू टोन ज़्यादा ऐड होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू टोन में भी स्पेसिफिकली मैं कहूँगा सियान, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सियान ऐड होता जा रहा है। अगेन अपनी एक स्पेसिफिक रेंज चूज़ कर लेता हूँ मैं, जैसे हमने पहले चूज़ किया था। मैं चाहता हूँ कि अभी मेरे जो सिर्फ हाइलाइट्स हैं, राइट, जैसे मेरा स्काई है, क्लाउड्स, माउंटेन्स, वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हल्का ब्लू टोन ऐड हो या फिर सियान टोन ऐड हो, सो दैट कि वहाँ पे थोड़ी कूल फीलिंग आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने हाइलाइट्स में जाके अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं नेगेटिव की तरह ले आऊँगा, सो दैट कि मेरे हाइलाइट्स में सियान ऐड होता जाए। अब देख देख सकते हो आप कि सिर्फ और सिर्फ आपके जो हाइलाइट्स हैं जैसे स्काई है वहाँ पे मैं सियान कलर ऐड करता जा रहा हूँ, राइट।
सेम फॉर ग्रीन ऑल्सो, अगर आप अपने शेडोज़ में या ब्लैक एरियाज में जैसे यहाँ पे आपको लगता है कि ग्रीन ज़्यादा है, तो आप इसको थोड़ा नेगेटिव की तरफ लेके जाके इसमें मेजेंटा ऐड करवा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे करेंगे इस पॉइंट को पकड़ के। अब आप देख सकते हो कि आपके इस पर्टिकुलर रेंज में क्या हो रहा है कि मेरे पास जो ग्रीन कलर था वो कम होते होते यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजेंटा ऐड हो रहा है। तो अगेन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक उसी रेंज में हो, तो हम यहाँ पे अगेन कुछ कुछ पॉइंट्स लगा के इसको लिमिट कर सकते हैं। देन अगेन मैं इसको यहाँ पे मूव कर दूँ थोड़ा राइट साइड पे, तो आप अपने शेडोज़ एरिया में, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं बट शेडोज़, अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया पे आप अपने जो टोन है उसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट, वट एवर यू फील लाइक। देन वी हैव द ब्लू। अगर आप वैसे इसको ओवरऑल जैसे ब्लू को अगर मैं नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे येलो टोन ऐड होगी, तो कुछ इस सेम हाईलाइट्स में भी अगर मुझे चाहिए तो। सो अगर इसको मैं थोड़ा बहुत नेगेटिव की तरफ ले आऊँ तो मेरे पास एक अच्छी फिल्म लुक क्रिएट होती है, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा फिल्टर्स वगैरह में भी काफ़ी यूज़ होता है इसका इफेक्ट। देन यहीं पे सी इट्स ऑल अपॉन यू नो एक्सपेरिमेंटिंग योर पर्टिकुलर फुटेजेस। जैसे अगर मैं इसी को यहाँ पे ऐसे कर दूँ, सेम लेवल पे ले तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ से ऐसे कर दूँ क्या पड़ेगा, राइट। सो कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स अंटिल यू फाइंड अ डिजायर्ड रिजल्ट, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे ही रखता हूँ ऊपर। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर आरजीबी कर्व, कि आप आरजीबी कर्व के थ्रू कैसे यहाँ पे अपनी फुटेज को है थोड़ा और ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। देन वी हैव ह्यू सैचुरेशन कर्व। अब यहाँ पे जो कर्व ऐड होगी आप देख सकते हो, स्पेसिफिक एक कलर रेंज को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट नाउ दिस इज ह्यू वर्सेस सैचुरेशन, ह्यू वर्सेस ह्यू, ह्यू वर्सेस लूमा, लूमा वर्सेस सैचुरेशन। तो हेयर ह्यू वर्सेस सैचुरेशन मींस दैट आप अपनी फुटेज में से कोई भी एक स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हो। स्पेसिफिक कलर चूज करने के बाद आप उसकी सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो, राइट। सेम फॉर ह्यू वर्सेस ह्यू, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट करके आप उस कलर की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ग्रीन है वो ग्रीन चेंज होकर थोड़ा येलोइश टोन में आ जाए, पिंक टोन में आ जाए, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। एंड देन वी हैव ह्यू वर्सेस लूमा, मीन टू से दैट कोई भी एक स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हो, एंड आफ्टर चूजिंग दैट पर्टिकुलर कलर आप उसकी जो लाइटिंग की इंटेंसिटी, जो उसकी ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक कलर हम चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ यहाँ पे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास एक कलर रेंज आ गया, राइट। तो मैं इसमें थोड़ा एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, एंड आप अपने कलर को सिलेक्ट करके ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर की तरफ का जितना एरिया है वो क्या करेगा, वहाँ पे आपके जो सैचुरेशन है उसको इंक्रीज करेगा, एंड जो नीचे का एरिया है उसमें सैचुरेशन आपको डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैचुरेशन इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे टू अ सर्टेन पॉइंट, एंड देन उसके बाद सैचुरेशन अगर डिक्रीज करनी है तो, राइट। सो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टोन पे अगर मैं चाहूँ, जैसे यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके, सॉरी कमांड प्रेस करके आप यहाँ से अपने पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं, एंड इस पर्टिकुलर रेंज को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल ग्रीन की जो सैचुरेशन है वो कैसे चेंज हो रही है, और इसको मैं नेगेटिव की तरफ ले जाऊँ तो अभी मेरे पास जो रेंज है नेगेटिव की तरफ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कलर फेड आउट होने शुरू हो गए। सो इसको हम नॉर्मली रखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आफ्टर दैट अगेन ह्यू वर्सेस ह्यू में जाके ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो स्पेसिफिक आपको यहाँ पे रेंज दिख रही है कलर्स की, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें कोई भी कलर ऐड ऑन करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देख सकते हो। राइट, देन अगेन ह्यू वर्सेस लूमा, यहाँ पे भी आप अपनी जो स्पेसिफिक रेंज है वो सिलेक्ट करके इसका जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो आप देख सकते हो ये ज़्यादा ब्राइट है, ये ज़्यादा नेगेटिव है, राइट, वट एवर टोन यू वॉन्ट फॉर योर पर्टिकुलर रेंज।
देन ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन, मतलब आप पहले क्या होता था कलर के बेस पे हो रहा था, अब ल्यूमा के ऊपर क्या होगा कि करंटली कोई भी आपके पास स्पेसिफिक रेंज है जो आपके लाइटिंग की रेंज है, को ब्राइट एरिया के ऊपर आप कैसे इफेक्ट चाहते हो कि ब्राइट एरिया में सैचुरेशन कम हो या ज़्यादा हो, दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो अभी कर्व्स को डिसेबल करके देखते हैं। सो अभी आप जो है बेसिक डिफरेंस देख सकते हो कि पहले हमारे पास जो फुटेज थी और आपकी फुटेज में क्या डिफरेंस है, कलर्स वगैरह आप देख सकते हो न्यू एडेड है यहाँ पे। देन वी हैव कलर व्हील्स अगेन, शेडोज, मिड टोन्स, हाईलाइट्स। यहाँ से इस पर्टिकुलर स्लाइडर को अप एंड डाउन करके आप अपने जो शेडोज, मिड टोन्स और हाईलाइट्स इनकी जो इंटेंसिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप चाहते हो कि जो मिड टोन्स में से वो एरिया थोड़ा ब्राइट हो या थोड़ा डार्क हो, तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये मिड टोन्स पे अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो ओवरऑल फुटेज में आप देखोगे कि थोड़ी बहुत आपको ब्राइटनेस ऐड होती जाएगी। एंड यहाँ पे आप इसको नेगेटिव में लेके जा सकते हैं, डबल क्लिक करके रीसेट। शेडोज आपको ज़्यादा डार्क चाहिए या ज़्यादा ब्राइट चाहिए, राइट। देन फॉर दी हाईलाइट्स ऑल्सो, राइट। एंड स्पेसिफिकली आप अपने हाईलाइट्स, मिड टोन्स एंड शेडोज, हाईलाइट्स आपका ब्राइटेस्ट एरिया आ गया, शेडोज आपके बिल्कुल डार्क एरियाज आ गए जैसे यहाँ पे, एंड मिड टोन्स होंगे इन बिटवीन दी रेंज, राइट। तो यहाँ पे अगर आप कोई स्पेसिफिक कलर ऐड करना चाहते हैं अपने हाईलाइट्स में, जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ब्लू टोन ऐड कर सकता हूँ, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके आप इसको बाहर की तरफ मूव करेंगे, और जितना आप बाहर की तरफ मूव करेंगे आपके पर्टिकुलर फुटेज में उतना ही कलर ऐड होता जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो और अपनी स्पेसिफिक कोई भी एक लुक क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्रीन रख देता हूँ, ब्लू रख देता हूँ इंटेंसिटी के लिए, तो आप कोई भी अपना कोई स्पेसिफिक कलर है वो चूज कर सकते हैं। फॉर मिड टोन ऑल्सो टू एड एन ओवरऑल लुक टू आवर पर्टिकुलर फुटेज। देन वी हैव HSL, अगर कोई भी स्पेसिफिक रेंज है कलर की तो आप उसको चूज करके देन यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल की में ऐड करता हूँ तो आप कोई एक स्पेसिफिक कलर चूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ये कलर को, राइट। देन आप इस पे क्लिक करके अपनी रेंज को चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सिलेक्टेड है। आपको लगता है कि सिर्फ जो अम्ब्रेला है उसका ये पोर्शन सिलेक्ट हुआ है और ऐड करना चाहते हैं उस पर, तो प्लस आइकन पे क्लिक करके आप इसको यू कैन कीप ऑन एडिंग, और राइट टिल यू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना पोर्शन सेलेक्ट हो चुका है, इसको अनचेक करेंगे। एंड उसके बाद आप उसमें कोई भी जो इफेक्ट है उसको ब्लर करना है, ब्लर कर सकते हैं हल्का सा। उसकी करेक्शन है, मतलब इसको ब्राइट करना है, इसको डार्क करना है, राइट। कुछ कलर उसमें और एडजस्टमेंट चाहिए आपको, राइट, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक रेंज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अनचेक करता हूँ और यहाँ पे इसको नेगेटिव की तरफ ले जाता हूँ, माइनस करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर आप इसको लेफ्ट माउस बटन होल्ड करेंगे तो उतना एरिया ऐड भी होता जाएगा और उतना एरिया सब्ट्रैक्ट भी होता जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा आते हैं एंड यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इसके ड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट अगेन प्लस आइकन, लेफ्ट माउस बटन होल्ड करके रखते हैं थोड़ा सा, सो दैट कि मेरे पास एक रेंज आ जाए, राइट। आफ्टर दैट माइनस करके ये कलर जो है जो हमारे पास ऐड ऑन हो गया था उसको हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, राइट, ओके। देन यहाँ पे हम जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे डायरेक्टली ड्रेस के ऊपर आप देख सकते हो चेंज हो चुका है। अगर मैं ड्रेस का कलर भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से स्पेसिफिकली मैं कोई और कलर उसमें कोई और टोन ऐड करवा सकता हूँ, वट एवर आई फील लाइक। टेम्परेचर कंट्रोल अपने अकॉर्डिंगली, सैचुरेशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं उसमें। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्पेसिफिक एरिया है या फिर स्पेसिफिक क्लोथ है या स्पेसिफिक कलर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट रहे, बाकी सब कलर में रहे, तो हम वो भी ऑप्शन इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं, राइट। देन कमिंग बैक टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ योर विगनेट। सो विगनेट में क्या होगा कि हमारे
फुटेज के बॉर्डर के आसपास आप कोई भी कलर ऐड करवा सकते हो, दैट इज़ योर ब्लैक और योर वाइट। अगर मैं इसको नेगेटिव की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ पे एक विगनेट आप देख सकते हो क्रिएट होता जा रहा है, प्लस उसका जो मिड पॉइंट है आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे। राउंडनेस है, इसको कितना राउंड करना है कितना फोकस में वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। देन फेदर इज़ द सॉफ्टनेस, कितना सॉफ्ट रखना है, या फिर आपको हार्ड चाहिए तो बिल्कुल नेगेटिव की तरफ, तो कुछ इस तरह से इफेक्ट क्रिएट होगा। तो इसको बिल्कुल हम सॉफ्ट रखते हैं। सो मोस्टली विगनेट हम तब क्रिएट करते हैं जब हम अपने फुटेज के अंदर कोई भी फोकस रखना हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, राइट। बिकॉज मोस्टली क्या होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कलर से या लाइट से, तो हम अपना जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग सम विगनेट टू आर पर्टिकुलर फुटेज, राइट। देन अगेन इसको कॉपी करते हैं। देन बाकी जितने भी मेरे पास क्लिप्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी हमने कलर करेक्शन की हुई है, अगर यहाँ से मैंने हटाना है इसको तो राइट क्लिक करके मेरे पास एक ऑप्शन आता है कि जितने भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं अगर उसको रिमूव करना है तो राइट क्लिक करके रिमूव एट्रीब्यूट्स, और यहाँ से मैं चूज़ कर लूँगा। बाकी इनमें कोई चेंज नहीं करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जो ये वाले इफ़ेक्ट हैं ये रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके। अब इनके ऊपर मैं इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस कर सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे जो है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था कि कुछ एरियाज़ के जो कलर्स थे वो थोड़े फेडेड थे, तो हमने थोड़ी बहुत सैचुरेशन इंक्रीज़ की थी। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सेम ही टोन फॉलो कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स लुक कि ओवरऑल हमारी जो फिल्म की लुक है कैसी क्रिएट हुई है आफ्टर कलर ग्रेडिंग। राइट, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको बिफोर एंड आफ्टर भी ऐड ऑन करूँ देन एट दैट पर्टिकुलर थिंग यू कैन ऑब्जर्व कि कितनी ही डेप्थ हमारे फुटेज में ऐड हुई है। जैसे अगर मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके लेयर को कहीं पे भी आप मूव करते तो वो डुप्लीकेट हो जाएगी, राइट। सो इन लेयर्स में से मैं क्या करता हूँ अगेन रिमूव एट्रीब्यूट्स एंड लेट्स रिमूव द लिमेट्री कलर पैनल। ठीक है, ये हमारे पास बिफोर है एंड दिस इज द आफ्टर, राइट। सेम फॉर दिस, बिफोर आफ्टर, राइट। तो आप देख सकते हो कि कलर्स ऐड होने के बाद, कलर करेक्शन एंड ग्रेडिंग करने के बाद कितना मेजर चेंज आ जाता है हमारे ओवरऑल फिल्म के ऊपर, बिफोर आफ्टर, राइट। So this is how you can create a great impact on your particular footage. This is how you can enhance the visuals of your particular footage, right? So practice it and try to explore different kind of film looks through these particular tools. So that was all for today's session. See you guys in the next class.